Hello friends, welcome to this class. Today we are going to talk about some sentences that are used in the college. It may be a college or a school. Whenever we meet our friends, whenever we go in the morning time, and at that time we meet lots of friends that we have, at that time sometimes we think about speaking in English. Sometimes we think of speaking in English, and at that time, if somebody wants to speak in English or somebody wants to meet with all the friends and talk to in English, at that time, what kind of sentences are used there, and what kind of words are very proper that can be used at any time. So especially for this kind of situation, today we are going to have some sentences here, and after that you will be able to use all these sentences anywhere, because all these sentences are completely right. And after that, I want to tell you one more thing, that whenever we are going to meet, I have taken a situation that is, there is a situation in which there are three friends and all of them are going to meet in a college, and after that, in which way they are going to discuss the things, in which way they are going to talk to one another. You will be able to see all these kind of sentences here in this video. But yes, before starting this video, I would like to say one thing, of course, that it is not necessary that somebody who is going to watch this video will use only all these sentences. If you have got some other kind of sentences in your mind, at that time you can use all those things as well. But I'm going to just show you how, in which way people normally talk to one another, because the conditions may be different and some different kind of sentences can also be used. And I can't tell you about all the sentences because it's not possible for anyone to speak each and everything, to tell you each and everything, to teach everything that are spoken. But yeah, there are some common questions, there are some common answers to those questions that are given and that are asked. So I'm going to tell you about all these things, and from now on, if you're going to learn all these sentences, I'm sure you will be able to use these English sentences while having conversation with your friends, and that you know, college. Okay, college, university or school, wherever you're going to meet with your friends, at that time you can use all these kind of things there. Alright, so आज हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखने चल रहे हैं जिनका प्रयोग हम लोग कॉलेज में कर सकते हैं. नॉर्मली अगर कोई पहली बार कॉलेज जा रहा हो, उस टाइम पे उसको कुछ नए नए दोस्त बनाने होंगे, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना होगा, एक दूसरे से बताना होगा ये मेरा दोस्त है, ये करता है, वो करता है. उस टाइम पे अगर हमको ये सब बोलना होगा किसी नए कॉलेज में जाके, किसी नई यूनिवर्सिटी, इट मे बी स्कूल, कोई स्कूल हो, उस टाइम पे अगर हमको बोलना हो तो हम किस तरह से बोल सकते हैं चीज़ों को, और वो भी इंग्लिश में. ठीक है, हिंदी में तो कोई बोल सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे इंग्लिश में बोलना है क्योंकि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस बता दिए हैं, कुछ शब्दों को, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द बता दिए हैं जिनका प्रयोग करके आप लोग अब इंग्लिश में आराम से बातचीत कर सकते हैं, और वो भी अपने दोस्तों के साथ. बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता है, कभी कभी कुछ हमारे ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहुँचते ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे तुरंत. वो ये नहीं देखेंगे आपको समझ में आता है नहीं आता है, क्या नहीं है, वो बस बोलेंगे. तो उस टाइम पे ये भी ज़रूरी है ना कि आपको भी समझ में आता हो, क्योंकि किसी नई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाएंगे आप लोग, तो उस टाइम पे नहीं बोल सकते अलग की बात, कम से कम समझ में तो आना चाहिए. लेकिन अगर आपको ये सब याद भी है तो उसके बाद आप बोल भी सकते हैं. अगर ये सब याद है प्रॉपरली आपको, तो आप बोल भी सकते हैं, और वो भी विदाउट एनी हेजिटेशन एंड फंबल, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेजिटेशन, हिचकिचाहट के आप लोग इन सब का प्रयोग कर सकते हैं. तो एक तरीका दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको कि हाँ, इस तरह से बातें नॉर्मली की जाती हैं, और अगर आपको इस तरह से कभी बोलना हो तो आप इन सब का प्रयोग यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है, तो शुरू करें. अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, पहले यहाँ का मामला समझ लेते हैं, ये किस तरह से कहानी शुरू होने वाली है. एक कॉलेज है, वहाँ पे तीन दोस्त जाते हैं. ठीक है, तो दो दोस्त हैं पहले से, एक का नाम काव्या है और एक समीर है. ठीक है, ये लड़का है, ये लड़की, ये दोनों दोस्त हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो एक ही कॉलेज में. और वहाँ पे एक नई लड़की जाती है, शिखा नाम की. ये एक कॉलेज के दोस्त हैं ये दोनों पहले से ही, और ये जो जा रही है इसका नया एडमिशन हुआ है, बाहर से आई है. अब ये तीनों लोग मिलेंगे, उस टाइम पे एक दूसरे को कैसे बताएंगे मेरा दोस्त है, ये करता है, वो करता है, तुम क्या करते हो, तुम क्या नहीं करते हो, और तुम यही क्यों कर रहे हो. तो यही सब तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली कॉलेज में, और उस टाइम पे हम लोग कैसे इनका प्रयोग करेंगे, फिर कैसे जानेंगे, वही हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया ये दोनों तो दोस्त हैं. जब दोनों दोस्त हैं तो पहले से ही जानते हैं दूसरे को, और ये नई लड़की जो है नई आई है कॉलेज में, और उस टाइम पे अब इसको एक ऑफिस के बारे में पूछना है कि ऑफिस कहाँ पे है. मान लीजिए कहानी यहीं शुरू हो रही है, वैसे शुरू कहीं और से भी हो सकती है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कहानी यहीं शुरू हो रही है. ठीक है, तो ये दोनों दोस्त पहले से हैं और ये बाद में आई है नई. देखिए ये जो है एक लड़की, एक काव्या,
ये पहले से ही कॉलेज में पहुंच चुकी है और अब ये सीखा कॉलेज में गई है, ठीक है। ये इससे पूछती है, अब यही शुरू हो रही कहानी। एक्सक्यूज़ मी, ऑफिस कहाँ है? मान लीजिए किसी ऑफिस की बात हो रही है, ज़रूरी नहीं ऑफिस तो कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई फैकल्टी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे ऑफिस लिख दिया, ठीक है। तो आपको अगर कुछ और पूछना हो ऑफिस की जगह पे, जैसे यहाँ पे नोटिस बोर्ड कहाँ पे है या फिर कुछ और ऐसा, तो आप ऑफिस की जगह पे वो लगा दीजिए, ओके। तो ऐसे ही बोलना है। देखिए, तो शिखा गई कॉलेज में और काव्या से बोली जाके, एक्सक्यूज़ मी, ऑफिस कहाँ है? एक्सक्यूज़ मी, ऑफिस कहाँ है? एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग कहाँ होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दूसरी वीडियोज़ में, पता है आपको। व्हेनेवर वी हैव टू गेट समवन्स अटेंशन एट दैट टाइम वी यूज़ एक्सक्यूज़ मी। जब कभी भी हमें किसी का ध्यान पाना होता है उस टाइम पे हम लोग क्या लगाते हैं? एक्सक्यूज़ मी, बस। मान लीजिए काव्या जो थी, काव्या जो है ये, वो पहले से खड़ी थी वहीं पे कहीं पे कॉलेज में, और ये शिखा जब बाद में गई तो काव्या का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसने क्या बोला? एक्सक्यूज़ मी। क्योंकि उसका नाम तो उसको पहले से पता नहीं था। ये शिखा इसका नाम तो जानती नहीं थी कि इसका नाम काव्या है, क्योंकि दोनों नए नए हैं अभी ना। ये पहले से पढ़ती थी कॉलेज में और ये भी नई नई है ये, और इसको पूछना था इसी से कि ऑफिस कहाँ पे है, तो नाम तो पता नहीं था, इसलिए एक्सक्यूज़ मी, ऑफिस कहाँ पे है, इतना बोल दिया, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी तो वैसे इंग्लिश में ही लिखा है और मैंने बता दिया आपको इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जब कभी भी किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना हो तो हम लोग बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। अब इसके बाद ऑफिस कहाँ पे है, तो अब शिखा जो बोलेगी, अब इसी चीज़ को इंग्लिश में अगर बोलना है तो कैसे बोला जाएगा फिर? एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ दी ऑफिस? वेयर इज़ दी ऑफिस? कुल मिला के शिखा ने क्या कहा? एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ दी ऑफिस? एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ द ऑफिस? हो गया ना इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इस तरह से अगर आपको आपको भी यही चीज़ बोलनी हो, कहीं भी किसी से, अपने फ्रेंड से बोलना हो कि वेयर इज़ द ऑफिस? ऑफिस कहाँ है यार? वेयर इज़ द टीचर? टीचर कहाँ है? वेयर इज़ द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल कहाँ पे है? वेयर इज़ द पार्किंग? पार्किंग कहाँ है जहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है? वेयर इज़ द कैंटीन? कैंटीन कहाँ है? इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बस केवल एक शब्द चेंज करना है और वो है ऑफिस। यहाँ से ए हटा दीजिए और यहाँ से ए वाला ऑफिस हटा के ओ लगा दीजिए, जो आपको जानना है। समझ में आया? तो इस तरह से अगर ये इंग्लिश में बोलना हो एक्सक्यूज़ मी, ऑफिस कहाँ पे है, तो आपको क्या बोलना है फिर? एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ दी ऑफिस? ऑफिस कहाँ पे है? तो शिखा ने तो पूछ लिया और अब इनका काम खत्म, मतलब शिखा का काम अब खत्म हो चुका है यहाँ से। अब इसके बाद जिससे इसने पूछा है अब वो बोलेगी, काव्या, इसका नाम काव्या है, दूसरी वाली लड़की का जिससे पूछा गया। उसने कहा वहाँ पर, मतलब इशारा करके बताया होगा ना, वहाँ पर, वो देखो वहाँ पर, इस तरह से। अगर आपको ही बोलना हो वहाँ पर, तो आप भी कह सकते हैं ओवर देयर, ओवर देयर, ओवर देयर। मान लीजिए ऐसे ऐसे काव्या खड़ी थी, काव्या ऐसे खड़ी थी, उसने पूछा व्हाट इज द ऑफिस? ऑफिस कहाँ पे है? काव्या ने कहा ओवर देयर, वो देखो ओवर देयर, वहाँ पे है ऑफिस। तो इस तरह से इसने बता दिया। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा नहीं है, मान लीजिए, वो आप लोग अलग से बोल दीजिएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ क्या है। जब इसने पूछा इससे, तो इसने इसको बता दिया, मतलब छोटा मोटा काम कर दिया ना उसका, शिखा का। काव्या ने शिखा का काम कर दिया छोटा मोटा, तो जब बता दिया उसने तो इसको, अब मतलब शिखा को अब काव्या को धन्यवाद कहना चाहिए। तो वही मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं फिर? थैंक्स। मतलब अब शिखा को थैंक्स कहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काव्या से पूछा था उसने, काव्या ने बता दिया देखो वहाँ पर, जब वहाँ पर उसने बता दिया ओवर देयर, तो अब इसको थैंक्स कहना चाहिए, धन्यवाद। तो लेकिन मैंने लिखा नहीं है। अगर आपको इस तरह से बोलना हो कभी, आप ये हो सकते हैं यहाँ पे, ये हो सकते हैं, इसकी जगह पे हो सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे, तो आप थैंक्स ज़रूर बोल दें, ठीक है। तो ये हो गया वहाँ पर, क्या मैंने बोल दिया वहाँ पर, ओवर देयर, ओवर देयर, ओवर देयर, ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको पहले बताया था, ये जो है काव्या और ये समीर, ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से। ये शिखा नई नई आई थी कॉलेज में, तो वो नहीं जानते थे, वो नहीं जानती इन दोनों के बारे में कुछ, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो ये पूछ के, जब इसने पूछा इससे, शिखा ने जब काव्या से पूछा कि ऑफिस कहाँ है, तो इसने कहा ओवर देयर, वहाँ पे है। इतना बात खत्म। अब इसके बाद शिखा चली गई वहाँ पे। अब समीर आ गया। अब पहुँचते ही इसने क्या बोला? हेलो काव्या, हेलो काव्या। इस तरह से अगर आपको कहीं भी बोलना हो या फिर कोई और हो जो आपसे बोल रहा हो, तो उसका जवाब कैसे देना है अभी आगे देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको बोलना हो तो अब आप भी बोल सकते हैं। देखिए, काव्या यहाँ पे, समीर, समीर आया, उसने बोला हेलो काव्या, हेलो काव्या, हेलो काव्या। इस तरह से जो कुछ भी बोलना हो, हेलो काव्या, तो उसने क्या कहा? हेलो काव्या, क्योंकि ये पहले पहले से जानता था इसका नाम ना, साथ में दोनों लोग पढ़ते थे एक ही क्लास में, तो ये तो जानता है इसका नाम, लेकिन उसको नहीं पता था
इसलिए उसने नाम नहीं बोला। तो उसने कहा हेलो काव्या, और अब इसको अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो हेलो काव्या। हेलो काव्या। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो काव्या लिखा है ना, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग अगर किसी और का नाम हो तो उसने यहाँ पे डबल ए ना लगाए, कुछ और लगाया हो। लिखने वाले के ऊपर है कि वो लिखते वक्त मतलब किस तरह से लिख रहा है, डबल ए लगा रहा है या फिर सिंगल ए लगा रहा है। तो इस पर मत जाना, क्योंकि ये कई लोग होते हैं अलग अलग तरीके से लिख देते हैं, कोई सिंगल ए लगा के, कोई डबल ए लगा के, ठीक है। तो ए चेंज हो सकता है, अगर किसी लड़की का ही नाम है तो हो सकता है कहीं पे ए ही लगाया हो, अब कुछ लोग डबल ए लगाते हैं, तो अलग की बात है, ठीक। तो इस तरह से हेलो काव्या, हेलो काव्या, समीर ने बोल दिया। अब काव्या बोल रही है, हाय समीर, कैसे हो। इस स्थिति में अगर इसका मतलब इसका जवाब देने के लिए काव्या ने क्या बोला, हाय समीर, कैसे हो। और नॉर्मली ऐसे होता है, ऐसे ही कन्वर्सेशन होती है ना, ऐसे ही बात आगे बढ़ती है धीरे धीरे। फिर हाय समीर, हाय समीर, इस तरह से। फिर कैसे हो, दूसरा क्वेश्चन ही होगा, फिर कैसे हो। तो ये अगर बोलना होगा आपको तो हाय समीर, हाय समीर, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाय समीर, हाउ आर यू। इस तरह से होगा ये, जो आगे वाला बोलना है आपको इंग्लिश में, ठीक है। अब इसके बाद फिर से समीर बोल रहा है, मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद, और तुम। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह से आपको भी कहीं कहीं मतलब कई बार बोलना पड़ सकता है, या बोलना पड़ता ही होगा कि कोई अगर कोई पूछे हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आपको भी बोलना पड़ता होगा ना, थैंक यू, आई एम मतलब आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, थैंक्स, पूछने के लिए धन्यवाद, एंड यू, और तुम कैसे हो, ठीक है। एंड हाउ आर यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इतना बोल दीजिए एंड यू और तुम। अब वो उतना समझदार है, वो बता देगा अपने आप से, ठीक है। सो इस तरह से मैं अच्छा हूँ और तुम। अब इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो फाइन। समीर ने बोला फाइन, मैं अच्छा हूँ, थैंक्स, फाइन मतलब आपने पूछा था ना मैं कैसा हूँ, तुमने पूछा था मैं कैसे हूँ, तो मैं बता दे रहा हूँ मैं फाइन मतलब बढ़िया हूँ एकदम। वैसे इस फाइन की जगह पे WELL वेल भी लगाया जाता है, कभी कभी सुपर फाइन बोल दिया जाता है, कभी कभी गुड बोल देते हैं लोग। तो किसी भी शब्द का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने फाइन ही लगाया है, ठीक है। तो अगर कोई इन सब का प्रयोग करता है तो आप ये ना माने कि वो गलत है, वो सब भी सही है। फिलहाल के लिए मैंने एक ही लगाया है, क्योंकि चारों पाँचों मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको ऐसे प्रयोग होता है। इसके बाद थैंक्स, थैंक्स मतलब उसने पूछा था, इसने बता दिया, और फिर थैंक्स। अब इसके बाद एंड यू, और तुम, मैं तो अच्छा हूँ एकदम, और तुम। अब इसके बाद अगर इनको बोलना होगा ना कभी इंग्लिश में कि एक तो ये तो होता है ये नॉर्मली कि आई एम फाइन, ओके, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो, या तुम्हारे और जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सब। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, और पेरेंट्स मीन्स फादर एंड आई मीन मॉम एंड डैड, किसी के भी हो सकते हैं। उस केस में कैसे बोलना होता है फिर। एक चीज़ याद रखिए, ये जरूरी नहीं कंडीशन एकदम सेम ऐसे ही सेट हो जाए जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट ऑल दीज कंडीशंस आर गोइंग टू बी बिफोर यू जस्ट लाइक दिस। जरूरी नहीं ऐसा ही हो जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि बोलने वाले अलग अलग होते हैं। तो कोई कोई सेंटेंस बोल सकता है पहले, कोई बाद में बोल सकता है, लेकिन आप इस फॉर्मेट पे बोल सकते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसने क्या कहा, तो काव्या ने क्या कहा, मैं भी अच्छी हूँ, जब तुम अच्छे हो मैं भी अच्छी हूँ, ठीक है। इस ये अच्छी थी तो इसने कह दिया कि मैं भी अच्छी हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन, ओके। अगर ये कहना हो कि मैं अच्छी नहीं हूँ या फिर मैं अच्छा नहीं हूँ, तो यू आर फाइन बट आई एम नॉट, और आई एम अंडर द वेदर। कभी कभी ये भी बोला जाता है आई एम अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, इसका मतलब ये होता है नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे किसी तरह की समस्या है कोई, मैं उतना अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ अभी पे, तो इसलिए। और ये बहुत यूज होता है अंडर द वेदर। अभी कोई डॉक्टर से मिलने जाए और डॉक्टर पूछेगा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, सॉरी डॉक्टर आई एम अंडर द वेदर, मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं हूँ, या थोड़ी सी कोई दिक्कत है हमको, मुझे कोई दिक्कत है थोड़ी सी। तो उसके लिए क्या होता है फिर, अंडर द वेदर, ठीक है। या आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ, या आई एम अनवेल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ना, देर आर मेनी वेज ऑफ ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक सिंपल वाला बताया है जो नॉर्मली बोला जाता है, और मैं वही सेंटेंस आपको बता रहा हूँ जिसका प्रयोग ज़्यादा होता है। जो मैंने और बताया आपको तीन चार तरीके, वो सब भी बोले जाते हैं, लेकिन बहुत रेयरली, मतलब बहुत मतलब कभी कभार बोले जाते हैं, और ऐसे बहुत बोले जाते हैं। समझ में आई बात। तो इस टाइम पे काव्या अच्छी थी तो उसने कह दिया मैं भी अच्छी हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम फाइन टू, ये भी हो सकता है, लेकिन आप यही बोल लीजिए, ठीक है, आई एम ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो इसके लिए आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। इसने बता दिया समीर को कि हाँ समीर तुम भी अच्छे हो ना, मैं भी अच्छी हूँ, कोई बात नहीं। अब इसके आगे
इन दोनों की बात चल ही रही थी। बीच में वो जो लड़की गई थी ना, शिखा, वो जो गई थी ऑफिस के चक्कर में, मतलब ऑफिस जिसको बताया गया था, जो पूछ रही थी ऑफिस कहाँ पे है, वो गई थी। अब वो ऑफिस से अपना काम करके फिर से लौट के आ रही है। उसी लड़की के पास आई जो काव्या थी, जिसने उसको बताया था कि ऑफिस ओवर देयर, ऑफिस वहाँ पे है। अब उसी काव्या के पास फिर से लौट के आई ये शिखा, ठीक है। अब तीनों लोग आपस में बात करेंगे। देखिए, शिखा आई ना, शिखा ने काव्या से पूछा। वैसे सबसे पहले उसने काव्या से ही पूछा था ऑफिस कहाँ पे है, लेकिन तब उसको उसका नाम नहीं पता था, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप भी मान लीजिए किसी से कभी कुछ पूछे हों और दोबारा अपना काम करवा के वापस आएँ, अब उससे जिस आदमी से पूछ के गए थे, उससे कुछ देर और बातचीत करना है, कुछ और जानकारी लेनी है अपने कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, स्कूल के बारे में, तो उस टाइम पे अब बात आगे कैसे बढ़ेगी, अब वो देख लेते हैं हम लोग, इंग्लिश में कैसे बढ़ती है, ठीक है। देखिए, तो शिखा लौट के आई वापस से। अब वो बोल रही, हाय मैं शिखा हूँ। देखिए, इन लोगों ने कुछ पूछा नहीं उससे, लेकिन वो खुद बता रही है, हाय मैं शिखा हूँ। और किससे? काव्या से। हाय मैं शिखा हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? अब इस तरह से आपके साथ भी हो सकता है। हेलो, मैं सुधीर हूँ, या फिर मैं मुकेश हूँ, मैं रमेश हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? और कभी कभी लोग इसको जैसे होता है ना कि मैं आपका नाम जान सकता हूँ, कभी कभी लोग कहते हैं मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ। शुभ नाम के लिए गुड नेम का प्रयोग होता है इंग्लिश में, तो उससे कभी कंफ्यूज ना हो कि एक गुड नेम कहाँ से आ गया, ठीक है। लोग बोल देते हैं नॉर्मली कभी कभी गुड लगा के कि व्हाट इज़ योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है, ठीक है। तो उस तरह से भी बोला जा सकता है। हालांकि मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ही बोला जाता है। तो अगर कभी कभी कोई इस तरह से पूछे तो आप उसका मतलब कहीं और ना ले जाएं, ये कौन सा नाम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है शुभ नाम, गुड नेम मतलब शुभ नाम। तो शिखा ने क्या कहा, हाय मैं शिखा हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? इस तरह से अगर अभी इंग्लिश में बोलना हो तो, हाय आई एम शिखा, मैं शिखा हूँ, मे आई नो योर नेम प्लीज़। प्लीज़ लगाने से थोड़ा और ज़्यादा पोलाइटनेस बढ़ जाती है, थोड़ा और विनम्र लगने लगती है कोई बात, ठीक। बहुत विनम्रता से पूछी जा रही है। मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ, ठीक। तो इसने खुद बता दिया, हाय आई एम शिखा, मे आई नो योर नेम प्लीज़। तो ये चीज़ इसने किससे कहा? काव्या से, ठीक है। और अब काव्या क्या जवाब दे सकती है इसका, वो हम लोग आगे देख लेते हैं, ओके। देखिए, इसके बाद अब काव्या जवाब दे रही है, और किस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग करके, वो अभी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, शिखा ने पूछा था और काव्या जवाब दे रही है अब। हाँ क्यों नहीं, उसने पूछा, मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तो काव्या ने कहा, हाँ क्यों नहीं। तो इसको इंग्लिश में बोलना होगा, तो इसके लिए यस व्हाई नॉट, यस व्हाई नॉट, हाँ हाँ जरूर क्यों नहीं। तुम मेरा नाम क्यों नहीं जान सकती हो? जान सकती हो, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सो यस यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं। अब काव्या, ये जो है ना, काव्या ही बोल रही है इधर आगे भी यही। सो इसने कहा, हाँ क्यों नहीं जान सकती हो, मैं काव्या हूँ और ये मेरा दोस्त समीर है। अब अगर आपको इस तरह से बोलना होगा कि मैं ये हूँ और ये मेरा दोस्त वो है, मतलब जो नाम हो, आपका जो नाम होगा और आपके दोस्त का भी कोई नाम होगा, तो उस टाइम पे आप अपना नाम बताएं और उसके बाद समीर की जगह पे उसका नाम बताइए जो आपका दोस्त है, ठीक है। तो इस तरह से काव्या ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं काव्या हूँ, आई एम काव्या। यहीं पे लिखा है देखिए, आई एम काव्या, मैं काव्या हूँ, एंड दिस इज़ माई फ्रेंड समीर, और ये मेरा दोस्त समीर है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम आपको बोलना है कि तुम्हारा नाम क्या है। आप चाहते हो कि आप ये भी बताओ सामने वाले को कि ये मेरा दोस्त है, या फिर मेरे मॉम डैड हैं, या फिर मेरे टीचर हैं, कुछ और हैं, तो माई नेम इज़ दिस एंड दैट एंड दिस इज़ माई टीचर, और ये मेरे टीचर हैं, या फिर दिस इज़ माई ब्रदर, ये मेरे भाई हैं, या मेरे सिस्टर हैं, कोई और है। उसी के साथ अगर आप बात बढ़ाना चाहते हो तो आप ये भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसने क्या कहा, मैं काव्या हूँ और ये मेरा दोस्त समीर है, आई एम काव्या एंड दिस इज़ माई फ्रेंड समीर, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको भी कभी बताना हो किसी को, आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं वैसे। फिर शिखा, ये समीर कैसे हो, ये कौन पूछ रहा है? शिखा, वो जो लौट के आई ना ऑफिस से, वो लड़की पूछ रही है, शिखा बोल रही है समीर से। याद रखना, ये शिखा जो है समीर से पहली बार मिले जा रही है ज़िंदगी में। ये इससे पहले कभी ना तो मिली है, ना तो कुछ बोली चाली है, जब मिलेगी नहीं तो बोलेगी क्या। तो ये दोनों एकदम नहीं जानते एक दूसरे को। ये शिखा समीर को नहीं जानती, समीर शिखा को नहीं जानता।
हाँ, लेकिन शमीर काव्या को जानता है और काव्या समीर को जानती है, क्योंकि ये दोनों साथ में पढ़ते हैं एक ही क्लास में, लेकिन ये नहीं जानती है। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ अभी जानिए, अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए शिखा ने क्या कहा, समीर कैसे हो। एक ही याद रखना, जब कोई कभी किसी से पहली बार मिलता है तो उस टाइम पे कैसे हो या तुम कैसे हो, इस तरह से अगर पूछना हो तो उस स्थिति में हाउ डू यू डू का प्रयोग होता है, ना कि हाउ आर यू का। ठीक, अगर ध्यान हो तो कुछ देर पहले जब इन लोगों ने बात की थी ना, जब समीर और काव्या मिले थे उस कॉलेज में, तो इन दोनों में से किसी एक ने कहा था ना कैसे हो, तो उस टाइम पे समीर और काव्या जब कुछ देर पहले मिले थे तो उस टाइम पे दोनों में से किसी एक ने कहा था ना कैसी हो या कैसे हो, तो उस टाइम पे क्या बोला गया था, हाउ आर यू, क्योंकि ये दोनों कई बार मिल चुके हैं, मतलब कॉलेज में रोज़ पढ़ने आते हैं तो रोज़ मिलते हैं, क्लास में पढ़ते हैं तो रोज़, मतलब हेलो हाय होता है ऐसे, तो मतलब हाल चाल रोज़ पूछते हैं एक दूसरे का, तो हाउ आर यू कॉमन है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये दोनों तो रोज़ मिलते हैं, रोज़ बातचीत करते हैं। लेकिन ये शिखा जो आई है ना, पहली बार मिल रही है अभी इससे, तो जब कोई किसी से पहली बार मिलता है और ये जानना चाहता है कि आप कैसे हो, तो उस टाइम पे हाउ आर यू का प्रयोग ना करके हाउ डू यू डू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि काव्या और समीर दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि ये पहले से पढ़ते हैं साथ साथ, लेकिन शिखा ये नई नई आई है वही कॉलेज में। तो जब ये नई नई आई है और सबसे पहली बार ये पूछने जा रही है समीर से, इससे पहले वो बात नहीं की है समीर से, तो समीर से पूछ रही है कैसे हो उस टाइम पे। अब हाउ आर यू की जगह पे आपको हाउ डू यू डू बोलना होगा, क्योंकि ये चीज़ यही दिखाता है कि कोई किसी से पहली बार मिल रहा है अभी, हाउ डू यू डू तब बोला जाता है। और हाउ आर यू का प्रयोग आप कभी भी किसी से आते जाते उठते बैठते कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कॉमन ही है, वो सब जानते हैं। ठीक है, तो हाउ डू यू डू, समीर ने कहा, सॉरी ये शिखा ने कहा समीर से कैसे हो, तो समीर हाउ डू यू डू, शिखा ने कहा समीर हाउ डू यू डू, कैसे हो, कैसे हो मतलब हाउ डू यू डू, जबकि इन लोगों ने अपने अपने साथ क्या बोला था, हाउ आर यू। ठीक है, लेकिन अब की बार हाउ आर यू नहीं बोलना है, क्योंकि ये पहली बार मिलने जा रही है। ठीक है, ये जो सीखा है, इसलिए इस तरह से अगर आप भी किसी से पहली बार मिले कहीं पे, तो उस टाइम पे हाउ डू यू डू बोलें। और अगर मान लीजिए आप नहीं बोलने जा रहे हैं, कोई और आके आपसे बोल दे हाउ डू यू डू, तो उसका जवाब कैसे देना होगा, अभी देखिए। जैसे ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, बस ऐसे ही आपको भी बात करना है। ये तो मैंने उदाहरण दिया है ऐसे कहानी बना के कि ऐसे ऐसे मान लीजिए कहानी चल रही है, और आपको ये सारे सेंटेंसेस रियल लाइफ में मिल सकते हैं ऐसे बोलने को। तो इस स्थिति में कैसे कैसे कहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको ये याद रखना, उसके बाद आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे सेम सेम बोल सकते हैं अभी। देखिए, तो समीर कैसे हो, तो इसने कहा समीर हाउ डू यू डू। याद रखना, यहाँ पे हाउ आर यू नहीं बोला गया आपकी बार, मतलब शिखा ने हाउ आर यू नहीं बोला है, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, मतलब ये इसको जानती नहीं पहले से, पहली बार मिल रही है, इसलिए हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पहली बार मिल रही है। ठीक, सो समीर हाउ हाउ डू यू डू, समीर कैसे हो। अब समीर बोलेगा, एक चीज़ और याद रखिए, सबसे पहले चीज़ जानने योग्य ये है, सबसे पहले पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई कभी किसी से पहली बार मिल रहा है और उस टाइम पे वो उसका हाल चाल पूछने जा रहा है, उसकी हाल चाल पूछने जा रहा है, तो उस टाइम पे आपको हाउ डू यू डू बोलना है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जवाब भी हाउ डू यू डू ही होता है। अगर कोई आपसे हाउ डू यू डू बोल दे, जैसे हाउ डू यू डू, और आपको जवाब में भी हाउ डू यू डू बोलना है, फिर वैसे आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, ऐसे कैसे, मतलब जो सेम चीज़ है फिर से वही सेम क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन है, आप इसको इस तरह से लेके चलिए कुछ, जैसे आप बोलते हैं ना, आपके घर पे कोई आ जाए तो आप क्या बोलते हैं, नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामा जी। अब मामा जी क्या बोलेंगे, मामा जी छोड़िए कोई कुछ और, ऐसे ही आपके कौन कोई भी हो सकता है, नमस्ते बुआ, ऐसे मान लीजिए, नमस्ते बुआ जी या फिर नमस्ते मौसा जी। ठीक, तो वो क्या बोलेंगे, नमस्ते बेटा, आप बोलिए नमस्ते बुआ, ऐसे ही बोल दीजिए आप, नमस्ते मौसा। वो क्या बोलेंगे, नमस्ते बेटा, ये भी हो सकता है। तो कुल मिला के जो आप बोलेंगे ना वही घुमा के, नमस्ते भैया, तो जो आपके भैया वो क्या बोलेंगे, नमस्ते। जैसे आपने जो बोला नमस्ते भैया, तो आपके भैया क्या बोलेंगे, नमस्ते। ठीक है ना, सेम चीज़ जैसे आपने नमस्ते बोला, उधर से भी नमस्ते बोला गया फिर, तो वैसे ही जब कोई इधर से ये बोले ना हाउ डू यू डू, तो इसका जवाब भी हाउ डू यू डू ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। तो हाउ डू यू डू इसने बोल दिया। अब ये जो समीर है ना, अब ये जवाब देने जा रहा है, और किसका, ये जो हाउ डू यू डू बोला गया था उसी का जवाब देने जा रहा है ये समीर जो यहाँ पे है।
यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, क्यों डॉट 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 बना दिया है, पता है क्यों? क्योंकि ये बोलेगा भी यही सेम चीज़, हाउ डू यू डू, और ये फिर इंग्लिश में हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ केवल आपको कि ये हाउ डू यू डू का जवाब हाउ डू यू डू देना है। तो हाउ डू यू डू ये बोल चुकी है एक बार, अब यही चीज़ मुझे फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। लेकिन आप लोग इसका जवाब यही बोल के दीजिएगा। फिर उसके मतलब समीर ने ये बोला हाउ डू यू डू सीखा, उसके बाद वैसे तुम काव्या को कब से जानती हो। ये इतना बोलने के बाद, ये यहाँ से यहाँ तक इतना बोलने के बाद, वैसे लिखा तो है कोई बात नहीं, हाउ डू यू डू का जवाब समीर ने दिया है, और यही चीज़ यहाँ पे लिखना था, मैंने लिखा नहीं है, फिलहाल यहाँ पे मैंने लिख दिया सीधा लाके। तो समीर ने क्या कहा, हाउ डू यू डू सीखा, हाउ डू यू डू सीखा, और उसके बाद वैसे तुम काव्या काव्या से कब मिल काव्या को कब से जानती हो, वैसे तुम काव्या को कब से जानती हो। तो इसको बोलना हो बाय द वे मतलब वैसे, बाय द वे हाउ डू यू नो काव्या, तुम काव्या को कब से जानती हो। शिखा बोल रही है कब से, आज से अभी तो मिली पहली पहली बार आके उससे, क्योंकि उससे पहले कहाँ जानती थी उसको, तभी तो नाम पूछ रही है ना, नाम पूछ रही है, था पता सब पूछ रही है। तो इसने कहा फ्रॉम टुडे, आज से जानती हूँ। और काव्या बोल रही है, अब काव्या बोल रही है तुम कौन सा कोर्स कर रही हो शिखा, शिखा तुम कौन सा कोर्स कर रही हो। अब अगर आपको इस तरह से पूछ रहा हूँ किसी से, अपने दोस्त यार से, किसी से, भाई तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो यार, इसे पहली बार मिलेंगे तो ऑफ कोर्स सब कोई जानना चाहता है एक दूसरे के बारे में, तुम क्या कर रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो, कोई कोई लॉ कर रहा है, कोई बी कॉम एम कॉम, कोई कुछ MBA करने आया, कोई कंप्यूटर साइंस में कोई है, कोई कहीं पे है। तो इस तरह से अगर पूछना हो ऐसे और जवाब देना हो तो कैसे होगा, अभी आप देख सकते हैं, देखिए। सो तुम कौन सा कोर्स कर रही हो शिखा, अगर ये बोलना हो तो विच कोर्स आर यू परसुइंग या फिर डूइंग। याद रखना है, कभी कभी लोग परसुइंग बोलते हैं और कभी कभी डूइंग, तो कोई बात नहीं है, स्पोकन इंग्लिश में दोनों चल जाता है, आप चाहे जो लगाएं, लेकिन इतना जानते नहीं, परस्यू भी कभी कभी लगा जाता है, कभी कभी डूइंग भी लगा दिया जाता है। किताबों में दोनों देखने को मिल सकता है आपको लिखा हुआ, ठीक। तो तुम कौन सा कोर्स कर रही हो शिखा, तो विच कोर्स आर यू परसुइंग या डूइंग, ठीक। तुम कौन सा कोर्स कर रही हो, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। अब शिखा बोले मैं BCom फर्स्ट ईयर में हूँ, और तुम, मैं BCom फर्स्ट ईयर में हूँ और तुम, अब अगर आप BCom में नहीं BSc में हैं तो मैं BSc फर्स्ट ईयर में हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, सेकेंड सेमेस्टर में हूँ, मैं BSc सेकेंड सेमेस्टर में हूँ, या फिर कुछ भी हो सकता है। इस तरह से आप अपने हिसाब से बता दीजिए। मैंने यहाँ पे BCom फर्स्ट लिख दिया है, BCom फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कुछ भी हो आप उस हिसाब से बोलिए। तो सीखा मैं BCom फर्स्ट ईयर में हूँ और तुम, मैं तो BCom में हूँ कुल मिला के, और तुम अपना बताओ। तो आई एम इन BCom फर्स्ट ईयर एंड यू, और तुम। तो एक इससे पूछा जा रहा है काव्या से, जिससे बातचीत चल रही है। वैसे कहानी काफ़ी लंबी हो चुकी है ये ऑलरेडी, ऐसे इसको खींचा जाए ना, अगर मतलब इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए तो अभी काफ़ी हद तक इसको बढ़ाया जा सकता है बातों को। देखते हैं अगर इससे आगे भी खींचा जा सकता है इसको, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी तो मैं आगे वाली क्लास में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब का प्रयोग वैसे आप कॉलेज में नॉर्मली कर सकते हैं, या फिर स्कूल में कहीं भी कर सकते हैं बच्चों के साथ, और किसी और को भी सिखा सकते हैं कैसे ऐसे बोला जाता है बच्चों को भी। हाँ, जो बच्चे पढ़ने नहीं जाने चाहते हैं नॉर्मली, उन्हीं के साथ। वैसे एक चीज़ आप लोगों ने फील किया कभी, जो बच्चे होते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा समस्या कम होती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो फोर्थ फिफ्थ में पढ़ते हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है। ऐसे मान लीजिए किसी दिन बारिश हो रही हो, सुबह से ही बारिश हो रही हो, और खूब झमाझम बारिश हो रही हो, और जब बच्चे खूब खुश हैं एकदम से, आज बारिश हो रही है, आज एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, आज कहीं नहीं आना जाना है, खूब बारिश हो रही हो, और जब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो तो एकाएक बारिश बंद हो जाए। अब आप सोच के देखिए एक बार कितना तकलीफ होती है बच्चों को उस दिन। बच्चे भी सोचते हैं क्या भगवान, सुबह से अभी तक इतना झमाझम बारिश की है, आधा एक घंटा बरस जाते है और तो कुछ चला जाता है आपका, है ना। सभी लोग फील किए होंगे, हो सकता है आपने भी फील किया हो, हम लोगों ने भी देखा था ये उस टाइम पे। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ तभी होती थी जब बरस ही रही हो तो आधा एक घंटा और बरस जाओ ना, ताकि जो स्कूल जाने का टाइम है वो पूरा हो जाए, और उसके बाद फिर कोई नहीं कहेगा कि अब स्कूल क्यों नहीं गया, क्योंकि बारिश हो रही है तो कौन जाएगा स्कूल, है ना। और हम चले भी गए तो और बच्चे नहीं आएंगे, जब वो नहीं आएंगे तो फिर कैसे पढ़ाई होगी। तो सबसे बड़ी तकलीफ यही थी उस टाइम पे। मुझे लगता है यू मस्ट हैव फेल्ट दैट, आपने भी फील किया होगा हो सकता है। तो
ये यहाँ तक कहानी। अब इसके आगे थोड़ा और देख लेते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग इस तरह से बढ़ा चढ़ा के, मतलब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, कहानी नहीं है कुल मिला के, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देयर इज़ नथिंग वेस्ट इन इट। इसमें कुछ कुछ भी फालतू वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? सबका प्रयोग किया जाता है इस तरह से।